Hello friends, I am C.S. Zainab Razi and today we will be learning about rectification of errors. Now, whenever this chapter comes, rectification of errors, what is happening? There can be many n number of errors which can be committed by the accountant while accounting, while recording, while posting, and we now at this stage are trying to rectify those errors. See, दिस इज नॉट अ केस कि आपको अगर वो एंट्री रॉन्ग है तो आपने उसको डिलीट कर दिया. दैट इज नॉट अलाउड इन अकाउंट्स. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरर एंड देन उसको रेक्टिफाई करने के लिए मोस्ट कॉमनली एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप हियर इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स. पहले हम उसको समझते हैं और फिर हम आगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कैसे रेक्टिफाई करना है उसकी बात करेंगे. बिफोर दिस लेट मी ऑल्सो टेल यू बेटा दैट this chapter is very important. If I talk from CA foundation point of view, I know many a times in standard 11th rectification of errors is being done, but that it is not taken very seriously. Though it's an important chapter and you all should know about it, what you have to understand is, to understand this chapter very well, you need to have your base very thorough. आपका journal entry, रिकॉर्डिंग एंड देन पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट एंड स्पेशली सब्सिडरी बुक का जो नॉलेज है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. आई विल बी पोस्टिंग सून द वीडियोस ऑफ दोज चैप्टर्स ऑल्सो. अभी बच्चों ने डिमांड की थी तो पहले हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से ही स्टार्ट कर दिया है. ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ एरर्स. सो अभी फिलहाल आई अज्यूम दैट आपका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अगर नहीं है तो बाकी वीडियोज़ में देख के हम उसको कवर अप करेंगे. सो कमिंग ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल. And another type of error is called as clerical errors. They are clerical errors. And under clerical errors, then there are three type of errors: error of omission, compensating error, and error of commission. Okay, so let us understand one by one. Coming on to error of principle. Something is wrong here, just a second. Error of principle. Okay, what are error of principle? Error of principle are those errors where the accountant has made mistake in applying the accounting principles. जो basic accounting के concepts और principles होते हैं, किसको debit करना, किसको credit करना, अगर उसी में ही आपके fundamentals में ही mistake हो गई है, so such type of error are error of principle. And the second one, clerical errors, are all different types of errors because of negligence, lack of skill of the accountant. So these are एन नंबर ऑफ एरर्स विच इज पॉसिबल. हमसे कुछ भी गलती हो गई, छोटी मोटी एरर, रिकॉर्ड करना भूल गए, पोस्टिंग करना भूल गए, एंट्री रॉन्ग ले ली, अमाउंट रॉन्ग ले लिया, डेबिट के बदले क्रेडिट कर दिया. सो दोज ऑल कम अंडर क्लेरिकल एरर्स. उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ एरर ऑफ प्रिंसिपल, मैंने क्या बात की कि एरर ऑफ प्रिंसिपल आर दोज एरर्स विच हैपन ड्यू टू lack of accounting knowledge, where you have made an error in accounting principle. While applying accounting principle, if you've made some error, those type of error are called error of principle. And to simplify, we generally say that, example, where capital expenditure is taken as revenue expenditure, where capital expenditure is treated as revenue expenditure, or vice versa, or vice versa. ओके, अभी ये तो हमने देख लिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता ही क्या है. बच्चों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो. तो एक काम करते हैं, हम अभी ही वो चीज़ एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स छोड़ के मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्विकली विल डिस्कस व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. Quickly we'll discuss this. So capital expenditures are those expenditures, to be very frank, they are those expenditures of which benefit is of enduring nature. मतलब आपने कोई एक्सपेंडिचर आज किया बट उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम के लिए मिलने वाला है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं. सो यू रिसीव अ बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी. Whereas revenue expenditures are those expenditures which happen in your normal day-to-day activity. Day-to-day operating activity में आपके जो खर्चे हो जाते हैं उसको हम revenue expenditures बोलते हैं. इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं, बिकॉज
to understand capital expenditure and revenue expenditure is important for your chapters like final accounts, even for your chapter like depreciation. You need to understand the what should be the cost of asset. तो उसमें ये सब बातें आती है. So see, capital expenditure में the first thing is any expenditure incurred to bring the asset into existence. मतलब इसको भी simplified लिखूं, to purchase an asset. अगर आपने कोई asset purchase किया तो वो capital expenditure है. अच्छा, asset purchase करके all the expenses which are incurred before the asset is put to use. So expense on asset before the asset is put to use. For example, erection charges, installation charges. Suppose you have AC in your office. So AC सिर्फ लाके रख दूँ तो क्या हम बोल सकते हैं कि AC है हमारे ऑफिस में? नहीं. AC का कनेक्शन लगाना, पीछे कंप्रेसर लगाना, तो जो इंस्टॉलेशन इरेक्शन चार्जेस है वो इतने ही ज़रूरी है. AC आप सिर्फ बाय करके रख नहीं सकते. सिमिलरली आपके ऑफिस में CCTV कैमराज लगे हुए हैं, तो वो जो पूरा कैमरा का कनेक्शन, देन वन स्क्रीन जिसके ऊपर कैमरा का बराबर रिकॉर्ड करके आएगा, those charges are important for that asset to play a role. So all those expenses which are incurred to put the asset to use, they are also form part of capital expenditure. Then next we say that even here I would like to point out one more thing. All the expenses which are incurred on an asset on a second hand machine, जिसको हम बोलते हैं overhauling of second hand machine. मतलब आपने कोई ओल्ड मशीन, कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, लेकिन उसके ऊपर भी पहली बार जो खर्चा किया है बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग दैट एसेट, उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं. सो ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीन. ओके, देन नेक्स्ट वी कैन से that all the expenses which are incurred and which increases the earning capacity or productive capacity of the business. ऐसे कोई भी खर्चे जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है उसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर ऑफ अ सिनेमा हॉल. In a cinema hall, suppose that auditorium screen one is same, but suppose the cinema authorities put in more seats, put in more chairs. तो don't you think कि ये जो chairs इन्होंने आज लगाई है इससे इनकी permanent earning capacity बढ़ जाएगी? because अब क्या होगा, स्क्रीन वन तो वही है, मूवी तो वही दिखने वाली है, बट आपके पास टिकट सीट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टिकट्स बेच सकते हो. तो ऐसा भी कोई खर्चा किया जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, उसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं. एंड यहाँ पे ही इसको ही तोड़ मलोड़ के, नाउ सी दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल द एग्जाम्पल्स बाय राइटिंग द पॉइंट्स. ऐसे हर एक चीज़ लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट यू गाइज कैन ऑल्सो नोट इट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो यहाँ पे हम बोलते हैं ऑल दिस एक्सपेंसिस which helps you to permanently reduce working expense, जिससे आपके working expense actually permanently reduce हो गए. So if I take an example here, I can say maybe petrol driven kits are now, petrol driven से आपने CNG kits में convert कर दिया. So पहली बार आपको काफ़ी एक्सपेंस लगा होगा पेट्रोल से CNG पे आने के लिए, बट यू नो कि लॉन्ग टाइम आपका वर्किंग एक्सपेंस कम हो जाने वाला है. ओके, सो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? एनी बेनिफिट विच इज ऑफ एंड्योरिंग नेचर. एक्सपेंस कुछ किया जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड के लिए मिलेगा, उससे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं. वेयर एज कमिंग ऑन टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर नॉट नथिंग बट, अब देखो यहाँ हमने बात की इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, एंड हियर इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आई वुड से विच हेल्प्स यू टू मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस. maintain earning capacity. सपोज एक अकेडमी की बात करते हैं. अगर आप अग्रवाल क्लासेस में आते हो तो whenever you are coming in the class, suppose it's summers, you would want कि lightings proper होनी चाहिए, we should get proper fans or ACs, because whenever you are also sitting to study you need that proper environment. तो suppose best of the faculties are teaching you but the environment is not correct, you are being asked to sit on the फ्लोर्स, और ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो विल यू गाइज बी एबल टू सिट एंड स्टडी? नहीं. सो दीज एक्सपेंसेस, जो हम सैलरी बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हम स्वीपर के चार्जेस की बात करते हैं, सो ऑल दोज एक्सपेंसेस आर नेसेसरी टू मेंटेन योर अर्निंग कैपेसिटी. दस दे गो इन टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक सिंपल बताऊँ, जो बच्चे ने PNL अकाउंट वगैरह ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपके सब एक्सपेंसेस जो आपके PNL अकाउंट में आते हैं, conveyance, telephone, postage, printing and stationery, salary, wages, etc. Everything goes in revenue expenditure. Okay. Second,
हमने यहाँ पे परचेज ऑफ एसेट की बात की थी, हमने यहाँ पे वो सब एक्सपेंसेस की भी बात की थी विच आर इंकर्ड बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड all these expenses which are incurred after the asset is put to use, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. सो आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा? अपन ने एसी की बात की तो एसी की सर्विसिंग हो गई. देन कुछ छोटा मोटा रिपेयर्स हो गया मशीन का, कोई एक पार्ट वोन आउट हो गया तो उसे रिप्लेस किया, तो वो सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं. So here also you spend, but the benefit is not of an enduring nature. Such revenue expenditures help you to maintain the asset or maintain the earning capacity. That is revenue expenditure. Now coming back to our rectification of error. So we were talking about error of principle. Why I explained you capital and revenue expenditure is so that now you understand the example which I want to take. Error of principle are those errors wherein capital expenditure is being treated as revenue expenditure or vice versa. So let us take first one example. Wages paid for installation of machine. Wages paid for installation of machine debited to wages account. Debited to wages account. अब ये पॉइंट पढ़ के पहले समझेंगे कि क्या इसमें एरर हुआ है. सो लेट अस अंडरस्टैंड. वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन. वेजेस क्यों पे किया? मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए. हमने अभी ही डिस्कस किया है दैट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल दैट एक्सपेंसेस विच वर नेसेसरी टू पुट द एसेट इनटू यूज, उसे हम क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं. मतलब हमको वेजेस को कहाँ डालना चाहिए था? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था. बट व्हाट हैव यू डन? हमने देखो पॉइंट सेज वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, हमने गलती से वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, हमने ये एंट्री कर दी है. अंडरस्टैंडिंग? सो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, हमने वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया. हियर व्हाट हैज हैपेंड? कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल जहां हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बीन टेकन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. So suppose let us take the second example. Maybe repairs to machine. Repairs to machine debited to machine account. Debited to machine account. See here what is happening. आपने repairs करवाए तो repairs is a revenue expenditure. All that expenses which are required for maintenance of an asset is a revenue expenditure. But so entry होनी चाहिए थी repairs account debit to cash. If suppose I am assuming it is paid, ये होना चाहिए था. But what does the point say? The point says it has been debited to machine account. So हमने गलती क्या कर दी? हमने machine account मतलब हमने revenue expenditure को capital मान लिया. ऐसे टाइप के एरर को error of principle बोला जाता है. Okay. Now coming on to clerical errors. So clerical errors are of three types. The first is error of omission. Error of omission, as the name suggests, omission means to omit. आप कुछ एंट्री करना भूल गए, ठीक है, तो उसे बोला जाता है error of omission. Error of omission में again there are two parts. One is error of complete omission and another one is error of partial omission. Again the name suggests error of complete omission मतलब wherein you've not entered the entry, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट नहीं गए. सो मे बी आपने जर्नल एंट्री में एक एसेट क्रेडिट पे खरीदा और उसकी एंट्री रिकॉर्ड ही करना भूल गए. सो सपोज आई टेक एन एग्जांपल, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम भारत कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट, इसकी अगर एंट्री ही नहीं हुई है तो दैट इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. अच्छा, इज इट नेसेसरी कि रिकॉर्डिंग किस टाइम पे ही एरर होगा? नो, it can be at the time of posting. So same example we can take, computer purchase from Bharat Computers rupees 50,000 on credit, not posted, मतलब हमने जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया बट उसको वो जर्नल एंट्री को हम पोस्ट करना भूल गए लेजर अकाउंट में, तो दोनों डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट नहीं गया, इसीलिए उसे एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन बोला जाता है. Whereas coming on to error of partial omission, here what is happening,
one effect, either the debit or credit has been given, the next effect is not given. So see, error of complete omission में क्या होता है, both debit and credit effect not given. Whereas in case of error of partial omission, either the debit effect or the credit effect is not given. Any one is not given, then we say partial omission. So tell me, is it possible? Yes, beta. Now, specially it is possible when we come on to subsidiary books. See, subsidiary books, if I talk about purchase book, sale book, purchase return book, sale return book, what used to happen? Let's limit ourselves to purchase book. So purchase is purchase from Anil on credit. एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल. और अगर आप सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हो, आप परचेज बुक में एंट्री करते हो और अनिल के अकाउंट में क्रेडिट करते हो. ठीक है. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपने परचेज बुक में तो एंट्री रिकॉर्ड कर दी अनिल की, बट आपने अनिल के लेजर अकाउंट में जाके क्रेडिट नहीं किया. दैट इज अ केस ऑफ पार्शियल ओमिशन. क्यों? क्योंकि परचेज बुक में आपने एंट्री की अनिल की, परचेज का टोटल जाएगा परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे. सो आपका डेबिट इफेक्ट तो हो गया, बट आपका क्रेडिट इफेक्ट नहीं हुआ. दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन. ओके. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू compensating errors. Now I'll do one thing. I'll shift a bit here. Okay, now we'll come on to this part. Coming on to compensating errors. So, compensating errors are such type of errors wherein the error has happened into two different accounts or multiple different accounts, but it has happened in such a way that your debit and credit is finally tallying. आपके डेबिट क्रेडिट टैली होने में प्रॉब्लम नहीं होता है. सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं. सपोज परचेज इज अ डेबिट बैलेंस, राइट? तो आपके परचेज अकाउंट के डेबिट में आपने परचेज बुक का जब टोटल किया तो गलती से आपने 5000 ओवरकास्ट कर दिया. मतलब टोटलिंग करने में 5000 आपने एक्स्ट्रा टोटल कर दिया. दैट इज कॉल्ड ओवरकास्ट. कास्ट मीन्स टोटलिंग. सो आपका डेबिट 5000 से बढ़ गया है. सिमिलरली किसी और पेज के सेल्स बुक में सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बेटा, तो सेल्स अकाउंट में भी सपोज बाय मिस्टेक ऑन सम अदर पेज आपका 5000 ओवरकास्ट हो गया है. ऐसे टाइप के एरर से क्या हो रहा है, समवेयर डेबिट में भी मिस्टेक हुई है, क्रेडिट में भी मिस्टेक हुई है, बट वो मिस्टेक कुछ इस तरह से हुई है दैट फाइनली योर डेबिट एंड क्रेडिट इज टैलीइंग. दैट इज कॉल्ड कॉम्पेंसेटिंग एरर. And coming on to error of commission, now these are all residual errors जो कहीं जगह ये दो जगह पे फिट नहीं होंगे. अगर वो error of omission और compensating error नहीं है तो वो error of commission है. बट यहाँ पे काफी बड़ी लिस्ट है. सपोज रॉन्ग पोस्टिंग, तो रॉन्ग पोस्टिंग का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ. सैलरी अकाउंट को डेबिट करने के बदले स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो गया. देन पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड ऑफ द लेजर अकाउंट. आई कम ऑन दीज वर्ड्स ऑल्सो बेटा, कि पोस्टिंग रिकॉर्डिंग वगैरह. पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड ऑफ लेजर अकाउंट, डेबिट के बदले क्रेडिट हो गया, क्रेडिट के बदले डेबिट हो गया. रॉन्ग अमाउंट बीइंग रिटन, अमाउंट आपने रॉन्ग लिख दिया. देन रॉन्ग कास्टिंग, टोटलिंग में आपसे मिस्टेक हो गई. सो देयर आर n नंबर ऑफ एरर्स व्हिच कम इनटू एरर ऑफ कमीशन. ओके. नाउ ये एक पार्ट हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स. अब हम इसके आगे थोड़ा और जाके समझेंगे. फर्स्ट कमिंग ऑन टू एरर ऑफ प्रिंसिपल. नाउ सी व्हाट हैपेंस. Error of principle are called as double-sided error. Double-sided error. Why? Let us understand. See, in case of error of principle, what happens? जैसे ये एक एग्जाम्पल हमारे ऊपर ही दिख रहा है. रिपेयर्स को डेबिट करने के बदले हमने मशीन को डेबिट कर दिया. So, some debit effect you have given. So double-sided error means such type of error will not be known from trial balance. If you see the trial balance, your trial balance will tally. Trial balance will tally.
बेसिकली आप जब अपना ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आपको वो देख के समझ में नहीं आएगा कि आपसे कोई मिस्टेक हुई, आपकी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगी, यू विल फील कि हाँ मेरा डेबिट क्रेडिट सही है। आपने डेबिट क्रेडिट डाले तो है बट अंदर मिस्टेक है वो पता नहीं चलता है। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल इज सच टाइप ऑफ एरर जो ट्रायल बैलेंस बनाने से पता नहीं चलता कि हमारी मिस्टेक हुई है कि नहीं। ओके, वेर एज आई कम ऑन टू प्रॉफिट और लॉस, your profit or loss gets affected because of error of principle, because you have treated capital expenditure as revenue, revenue expenditure हमारे पीएनएल अकाउंट में जाता है, या फिर आपने रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया उन सब केसेस में। जैसे ये रिपेयर्स, आपको रिपेयर्स डेबिट करना था, दिस वाज एन एक्सपेंडिचर, बट आपने मशीन आपने उसको कैपिटलाइज कर लिया तो आपने एक्सपेंस कम बताया, आपका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, and vice versa. So in case of error of principle, trial balance tallies but the profit and loss gets affected. Okay, now coming on to error of omission, let us move on to error of omission. Since हमने यही बनाया था, let's write here. Okay, see, error of complete omission is again a double sided error, because what is happening, हमने जो डिस्कस किया, आपने या तो वो पूरी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं किया या पूरी एंट्री रिकॉर्ड किया लेकिन दोनों इफेक्ट पोस्ट नहीं किए, डेबिट भी नहीं किया और क्रेडिट भी नहीं किया। तो अगेन इन सच अ केस व्हाट विल हैपन, योर ट्रायल बैलेंस विल टैली, TB is trial balance will tally, but when it comes to profit or loss it will depend. Now why do I say depend, why am I not saying कि will it be affected or not, because your बेटा profit और loss के लिए you'll have to see कि कौन से दो अकाउंट में मिस्टेक हुई, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। कि अगर नॉमिनल अकाउंट अफेक्ट हुआ है, जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था आपको कंप्लीट ओमिशन समझाने के लिए, आई टुक एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर परचेज फ्रॉम भारत कंप्यूटर नॉट रिकॉर्डेड, so there the entry is computer account debit real account to Bharat Computers personal account. ऐसी एंट्री में नॉमिनल अकाउंट आया ही नहीं तो प्रॉफिट और लॉस अफेक्ट नहीं हुआ। बट हम कोई ऐसी एंट्री ले, सपोज सैलरी पेएबल, एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एंट्री की अगर पोस्टिंग नहीं हुई है तो आपका सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, वो डेबिट नहीं हुआ है, इन सच अ केस profit or loss will get affected. Okay, so profit or loss depends. Now coming on to error of partial omission. Partial में हमने बात ही की कि here either debit or credit, either debit effect is given or credit effect is given, so such type of error is single sided error, single sided error. ऐसे टाइप के एरर्स से आपकी ट्रायल बैलेंस कभी भी टैली नहीं होगी, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। सो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है, ठीक है। एंड अगेन कमिंग ऑन टू प्रॉफिट और लॉस, आई वुड से इट विल डिपेंड, बिकॉज बेटा अगेन यहाँ पे देखना पड़ेगा, इफ अ नॉमिनल अकाउंट इज बीइंग affected, if a nominal account is affected then profit or loss will get affected. If a nominal account, जैसे same example, salary paid not debited to salary account, मैं वो सब वर्ड्स पे भी मैंने आपको कहा, इसके बाद आई कम ऑन टू दोज वर्ड्स कि रेक्टिफिकेशन और एरर्स में हम अभी सीखेंगे, ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़े, इसके बाद वी लर्न के एरर को रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, और एरर को रेक्टिफाई करने के लिए 3 स्टेजेस होते हैं। So in all those cases, one thing you need to understand the transaction very well and know कि गलती कहाँ हुई है, एरर कहाँ हुआ है। अगर आपको वो आ जाता है तो फिर उसको रेक्टिफाई करना इज नॉट अ बिग थिंग। ओके, फर्स्ट लेट अस कंप्लीट दिस। सो प्रॉफिट और लॉस विल डिपेंड, अगर नॉमिनल अकाउंट, जैसे मैंने जो एग्जांपल अभी ले रही थी, सैलरी पेड नॉट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, हियर व्हाट इज हैपनिंग, सैलरी पेड बोला, कैश बुक पे एंट्री हो चुकी है, कैश क्रेडिट हो चुका है, सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट नहीं हुआ है, अब आप जाके उसको डेबिट करोगे, तो अगर सैलरी डेबिट नहीं हुई तो आपका प्रॉफिट और लॉस अफेक्ट होगा। बट सपोज परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल नॉट पोस्टेड, तो वहां अनिल के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया है ना, अनिल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, उस केस में प्रॉफिट और लॉस अफेक्ट नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन प्रॉफिट और लॉस डिपेंड्स। देन मूविंग अहेड टू with compensating errors. Okay. Now compensating errors, what did we say? Compensating errors, we discussed that कॉम्पेंसेटिंग एरर्स होते ही वो है जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, समवेयर एरर कुछ इस तरह से हुए कि हमारा डेबिट और क्रेडिट टैली हो जाता है। सो इवन सच टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एज डबल साइडेड एरर, बिकॉज योर डेबिट एंड क्रेडिट फाइनली टैलीज,
and thus in such case your trial balance will tally, your trial balance will not get affected. ट्रायल बैलेंस देख के पता नहीं चलेगा. एंड कमिंग ऑन टू प्रॉफिट और लॉस, आई शुड अगेन राइट इट विल डिपेंड. इफ नॉमिनल अकाउंट में प्रॉब्लम है तो प्रॉफिट और लॉस अफेक्ट होगा, अगर नॉमिनल अकाउंट में कोई इश्यू नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस अफेक्ट नहीं होगा. देन कमिंग ऑन टू एरर ऑफ कमीशन. नाउ एरर ऑफ कमीशन कैन अगेन बी डबल साइडेड और सिंगल साइडेड. मतलब यहाँ पे आई कैन जस्ट राइट, बाकी हम क्वेश्चन में देखेंगे, नहीं तो एक एक पॉइंट यहाँ लेके डिस्कस करेंगे तो इट विल बिकम टू बिग. कमिंग ऑन टू एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में जैसे मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल दिया, रॉन्ग पोस्टिंग. सपोज आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों रॉन्ग पोस्ट किए तो देन ऐसे टाइप का एरर विल बिकम डबल साइडेड. बट जो मैंने एग्जांपल लिया, परचेज अकाउंट में सही डेबिट किया, खाली अन्य अकाउंट में क्रेडिट रॉन्ग कर दिया, तो सच टाइप एरर्स बिकम सिंगल साइडेड एरर. सो योर ट्रायल बैलेंस गेटिंग अफेक्टेड और नॉट ऑल्सो डिपेंड्स, and profit or loss getting affected or not also depends. P&L account getting affected or loss also depends. Okay, that was all about different types of errors. Now let us move ahead with how to rectify the error. We will talk about rectification of errors. So there is a simple formula when you can use for rectification of errors. What is that formula? The formula says write the correct entry. मैं एक बार पूरा लिख रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से I'll just write CE. Write the correct entry plus reversal of wrong entry. Reversal of wrong entry, and when you add both you get rectified entry. आप लोग इसको नोट कर लेंगे और फिर हम क्वेश्चन पढ़ के और अच्छे से इसको समझेंगे. सो हम करते क्या है, आई जस्ट गिव यू अ जिस्ट कि हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं. सी, वी मेक अ वर्किंग नोट, मतलब वी मेक अ काइंड ऑफ अ टेबल. वी राइट रॉन्ग एंट्री. रॉन्ग एंट्री इज क्या हो गया, आपने क्या मिस्टेक की है. वही मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आप क्वेश्चन या ट्रांजैक्शन पढ़ोगे सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि मिस्टेक कहाँ हुई है. ये जो हो गया है इसे आप रिवर्स कर दोगे. Reversal of wrong entry. We'll take an example here itself. Then you write the correct entry. Correct entry is क्या होना चाहिए था. क्या होना चाहिए था. Write क्या होना चाहिए था. And this column number 2 and column number 3, when you add, you get your rectified entry, rectification entry. Okay. So let's do one thing. Let's take a point. Let's take a question itself to understand. Okay, so I'll take a question. Okay, so suppose salary paid rupees 5,000 to Mohan, debited to stationery account. Okay, now before we proceed further, let us quickly discuss this point. Beta, see, whenever rectification of errors comes, मैंने आपको क्या बोला, आप ट्रांजैक्शन पढ़ के ये समझने की पहले तो कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हुआ, मतलब इट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ सी वेर यू रिकॉर्ड ईदर इन द बुक कॉल्ड जर्नल और सब्सिडरी बुक. वो दो जगह आप रिकॉर्ड करते हो, फिर आप पोस्टिंग करते हो लेजर अकाउंट में. तो आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के पहले ये समझना जरूरी होगा कि हमारे रिकॉर्डिंग स्टेज पे एरर हुआ है या हमारे पोस्टिंग स्टेज में एरर हुआ है. अब वो कैसे पता चलेगा? इफ द वर्ड्स आर यूज्ड लाइक दिस, एंटर्ड और रिकॉर्डेड, अगर ऐसा कोई वर्ड आपको ट्रांजैक्शन में दिखता है, मतलब ये आपके जर्नल या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग स्टेज पे एरर कमिट हुआ है. वेराज अगर आप ऐसा कोई वर्ड देखते हैं, डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड, ऐसे टाइप के एरर्स हम समझ जाते हैं कि ये हमारे कहाँ पे हुए हैं, पोस्टिंग के टाइम पे, लेजर पोस्टिंग में हमसे मिस्टेक हुई है. तो इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, सैलरी पेड 5,000 टू मोहन.
अभी पहले आप इतना ही पॉइंट पढ़ेंगे. सैलरी पेड 5,000 टू मोहन. कम ऑन, कम, थिंक क्विकली. सैलरी पेड की एंट्री क्या होनी चाहिए? सैलरी पेड की एंट्री क्या होनी चाहिए? वो हमारी करेक्ट एंट्री में हम लिखेंगे. क्या होना चाहिए था? सैलरी अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. टू, they are saying beta paid, so it should be to cash account, and amount would be 5,000. Your amount is not a mistake, so chalo, let me write 5,000. This should be the entry. Do you all feel कि मोहन डेबिट होना चाहिए? Yes, correct. मोहन डेबिट नहीं होना चाहिए. Why? Because whenever it comes to nominal account, we never take that person's name. हम नॉमिनल अकाउंट में वो पर्सन का नाम कभी नहीं लिखते हैं. हम सिर्फ सैलरी अकाउंट या जो भी खर्चा हुआ है हम वो खर्चे के अकाउंट को डेबिट करते हैं. ओके. अच्छा, एक और चीज समझते हैं यहाँ पे. ये सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, टेल मी बेटा, ये जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड हुआ होगा या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा? ये हुआ होगा कैश बुक में अपनी. सो कैश क्रेडिट हो चुका है. ठीक है. अच्छा, सैलरी को आपको डेबिट करना था 5,000. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रॉन्ग क्या हो गया. दे आर सेइंग इट हैज बीन डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट. मतलब मैंने कैश बुक के कैश के क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड पे 5,000 तो रिकॉर्ड कर दिया, बट जब मैं सैलरी को डेबिट करने जाती हूँ तो गलती से सैलरी के बदले मेरी रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? देखिए, रॉन्ग एंट्री हो गई है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट. स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 5,000. ओके. ये मुझसे रॉन्ग एंट्री हो गई. समझ रहे आप लोग? अच्छा, अब इसको रेक्टिफाई एंट्री कैसे निकालेंगे? हमने क्या बोला, जो रॉन्ग एंट्री उसको रिवर्स करो. तो जब मैं रिवर्स करती हूँ, मैं कैश डेबिट कर देती हूँ 5,000, एंड मैं स्टेशनरी अकाउंट, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है बेटा, स्टेशनरी अकाउंट को मैं क्रेडिट कर देती हूँ 5,000. एंड देन ये जो रॉन्ग एंट्री का रिवर्स जो और करेक्ट एंट्री, ये दोनों को हम ऐड करेंगे. सो बेटा अगेन एक और चीज अकाउंट्स में, like in maths, +5 and +4 is +9. Do you guys agree? -5 and -4 is -9. Do you guys agree? अच्छा, -5 and +4, when there is one negative and one positive, you actually apply subtraction. But I'll write the answer -1 because minus sign के आगे वाला number बड़ा है. And if it was +5 and -4, then my answer would have been a +1. Okay. So what do we understand कि plus plus add होता है, minus minus भी add ही होता है. But whenever there are opposite sign, minus plus or plus minus, then in these cases we subtract. ठीक है. सिमिलरली अकाउंट्स में भी आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है. उसको बहुत क्लियरली मैं पहले लिखती हूँ, फिर हम उस ऊपर वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं. बेटा अकाउंट्स में भी ये समझना बहुत जरूरी है दैट डेबिट एंड डेबिट इज ऐड. I am not saying debit is plus or credit is minus or anything like that. Whenever there are two debits, it's add. Credit and credit is also add. But whenever there is one debit and one credit, or whenever there is one credit and one debit, we apply subtraction. Subtract. Now, फाइनल आंसर डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए, दैट विल डिपेंड. अगर अमाउंट डेबिट का बड़ा है तो डेबिट में आएगा, अगर अमाउंट क्रेडिट का बड़ा है तो क्रेडिट में आएगा. ठीक है. ये बेसिक चीज है, आप लोग को पहले एकदम अच्छे से समझ लेनी चाहिए. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे. सो सी योर वे वी आर सेइंग कि हम रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री को ऐड करेंगे. कैश डेबिट एंड कैश क्रेडिट. डेबिट और क्रेडिट है तो हम क्या करेंगे? माइनस. बट यर 5,000 एंड 5,000 दोनों जगह 5,000 है, तो 5,000 एक्चुअली कैश एक्चुअली गेट्स कट. और आप लॉजिकली भी समझे बेटा, तो यहाँ पे सैलरी में ही मिस्टेक हुई थी. कैश तो राइट क्रेडिट हुआ था, तो एक्चुअली रेक्टिफाइड एंट्री में कैश आएगा ही नहीं, कैश अकाउंट हमारा वहीं कट हो गया. अच्छा, अब सैलरी डेबिट करना है हमको 5,000. कैन आई सी अ सैलरी अकाउंट हियर? नो, आई कैन नॉट. कैन आई सी अ सैलरी अकाउंट हियर? सैलरी इज डेबिट, सैलरी क्रेडिट नहीं है, तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री में सैलरी डेबिट हो जाएगा. सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000. एंड ये स्टेशनरी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट 5,000.
So salary account debit to stationery account 5,000. Understood? Reversal of wrong entry plus correct entry will give you rectification entry. Okay. Now, we'll do more questions in the next video to understand these things better. Now, one last point which I want to discuss in this video is about there are 3 stages when it comes to rectification. 3 stages of rectification is there. First is before preparation of trial balance. When do you rectify? First case is before preparation of trial balance. Second case is after preparation of trial balance. And third case is after preparation of final accounts. Let us see how things differ if we change. See, बिफोर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एज द नेम सजेस्ट, आपने अभी तक सिर्फ रिकॉर्डिंग की और पोस्टिंग की, आपने खुद ने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया. ऐसे केसेस में अगर आपको कोई एरर मिलता है तो आप उसे तुरंत वहीं रेक्टिफाई कर देंगे. व्हाट आई वांट टू से इज इन सच केसेस अगर डबल साइडेड एरर है तो ठीक है, आप उसे रेक्टिफाई कर दो. जैसे ऊपर वाला जो हमने क्वेश्चन किया, क्या आप लोग बता सकते हो वो डबल साइडेड एरर है या सिंगल साइडेड एरर है? बेटा वो डबल साइडेड एरर है. क्यों? सैलरी डेबिट होना चाहिए था, ठीक है सैलरी डेबिट नहीं हुआ पर स्टेशनरी डेबिट हुआ ना, तो मतलब डेबिट और क्रेडिट के इफेक्ट दिए गए थे बट वो रॉन्ग थे. तो ऐसे आप देखोगे डबल साइडेड एरर में आपको खुद से ही हमेशा जर्नल एंट्री दिख जाएगी. जर्नल एंट्री आई, हमारी रेक्टिफाइड एंट्री इज एक्चुअली अ जर्नल एंट्री. सी हियर, बट आई एम सेइंग कि अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता और आपका सिंगल साइडेड एरर भी होता तो भी हम सिर्फ एरर को रेक्टिफाई कर देते. सो बी इट अ डबल साइडेड एरर और बी इट अ सिंगल साइडेड एरर, we just rectify it. I'll take a question of a single sided error to understand. Okay, if trial balance is already prepared, what is a trial balance beta? Trial balance is a statement of all the ledger accounts showing their balances either debit or credit, and finally a trial balance tallies. तो ट्रायल बैलेंस बन चुका है, मतलब जर्नल और लेजर पोस्टिंग हो चुकी है. ठीक है, अब आपके ट्रायल बैलेंस बनने के बाद उस चीज पे मैं बाद में आऊंगी कि अगर डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस कैसे बना. अभी बात कर लेते हैं. अगर डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हो रहा है और आपको जल्दी आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, सो द डिफरेंस गोज इन सस्पेंस अकाउंट. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हेनेवर यू आर रेक्टिफाइंग एन एंट्री एंड इफ यू आर रेक्टिफाइंग आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, देन journal entry is a must. Journal entry matlab you will have to pass a entry where there is a debit and a credit. मतलब अगर डबल साइडेड एरर, जैसे हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट था, डबल साइडेड एरर है तो आपने देखा उसका डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों आ गए, सैलरी डेबिट टू स्टेशनरी हो गया. लेकिन अगर सिंगल साइडेड एरर होता तो फिर क्या होता? सिर्फ एक डेबिट या फिर एक क्रेडिट का इफेक्ट होता, दूसरा इफेक्ट नहीं होता. तो इस केसेस में व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस इन डेबिट और क्रेडिट, the difference goes to suspense account. You have to open a suspense account. क्वेश्चन लेके समझेंगे. ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है that whenever you are preparing you are rectifying the error after preparation of trial balance, then journal entry is a must. Now coming on to after preparation of final account. Now see third case what has happened. ट्रायल बैलेंस बनी, फाइनल अकाउंट भी पूरा बन गया, मतलब आपका ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट एवरीथिंग वाज मेड, उसके बाद जाके आपको एरर मिलता है उस साल का. सो अगेन एक चीज तो समझेंगे, यहाँ पे भी जर्नल एंट्री विल बी अ मस्ट. आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट देने पड़ेंगे एज पर डबल एंट्री सिस्टम. सो जर्नल एंट्री ही पास करनी पड़ेगी एंड द रूल इज सेम. अगर डबल साइडेड एरर है तो जर्नल एंट्री ऐसे ही पास हो जाएगी. अगर सिंगल साइडेड एरर है तो जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट में जाएगा. डेबिट और क्रेडिट अगर टैली नहीं होता है तो सस्पेंस अकाउंट विल बी ओपन. बट द मेन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर हियर इज व्हाट यू विल हैव टू रिमेंबर, all nominal accounts to be transferred to P&L adjustment account, profit and loss adjustment account. Why so? Please understand that year's trial balance was prepared, final accounts have been made. Final account बनता है तब होता क्या है,
आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हो, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट में और आपकी बैलेंस शीट भी बन चुकी है, फाइनल अकाउंट पूरा हो चुका है। अब बेटा लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस में अगर आपको एरर दिखता है तो आप उसको सिर्फ अगर एक्सपेंस लिख देंगे तो वो इस साल के एरर्स, इस साल के एक्सपेंसेस के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट वगैरह की बात हम बाद में करेंगे, मैं अभी एकदम टेक्निकलिटी वर्ड में यहाँ नहीं जाना चाहूंगी। आई जस्ट से कि कोई भी नॉमिनल अकाउंट आता है तो फिर आप उसको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस लास्ट पॉइंट बिफोर वी कंक्लूड विद आवर वीडियो। लेट अस टेक अ पॉइंट, सैलरी वाला ही लेते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, सैलरी पेड ₹5,000 debited as ₹15,000. Very important, please pay attention. Salary paid ₹5,000 debited as 15,000. Here what is happening? Again, मैंने आपको क्या बोला था, हम लोग सिंपली ऐसा सोचेंगे, रॉन्ग एंट्री, देन रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, correct entry and rectified entry. And this point I'll tell you, if we were rectifying the error before preparation of trial balance, after preparation of trial balance, yeah, after preparation of final account. Wait, let me write that. Before trial balance, after trial balance, and after preparation of final accounts. Let us see. Let us see. Now, first, salary paid 5,000. What did I say? ट्रांजैक्शन को आधा पढ़े और पहले करेक्ट एंट्री अपने माइंड में सोच ले और लिख भी ले। सो सैलरी पेड 5,000, एंट्री वुड बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, 5K. You don't write 5K, 5,000. Okay, this is the correct entry. Now what they are saying? Debited. Again beta, the word is debited. See, please understand. If it was recorded as 15,000, रिकॉर्डेड एज 15,000 मतलब क्या, सैलरी टू कैश दोनों आपने 15,000 कर दिया है। बट यहाँ वो लोग क्या बोल रहे हैं, सैलरी पेड की एंट्री में हमने सिर्फ डेबिट में मिस्टेक की, मतलब ये सैलरी पेड कैश बुक में रिकॉर्ड होता है तो कैश क्रेडिट 5,000 सही हुआ। सो द रॉन्ग एंट्री इज लाइक दिस, कैश क्रेडिट हुआ है 5,000 से, बट सैलरी अकाउंट को जब हम डेबिट करने गए हमने सैलरी को डेबिट कर दिया 15,000 से। मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है, डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हो रहा है। बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में वही तो है ना, डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं होगा, मतलब एरर कैन बी ऑफ एनी टाइप्स, यू नो। सो यू कैन नॉट से कि यहाँ डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हुई, हाँ नहीं हुई, इसीलिए तो एरर हुआ है। ओके ओके, नाउ जो रॉन्ग एंट्री उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो कैश डेबिट था 5,000, since I've written 5K here, I'm writing same here, and salary credit हो जाएगा 15,000. Okay, now what did we say? Reversal of wrong entry 2 plus 3. Reversal, this is column number 1, इसको हम कोई काम नहीं है। Reversal of wrong entry plus correct entry gives you rectified entry. So cash debit, cash credit, since the amount is same, it gets cut, मतलब कुछ नहीं आया। अब यहां देखो, सैलरी डेबिट 5,000 और सैलरी कितना क्रेडिट 15,000, इट्स द सेम अकाउंट बेटा इन दिस क्वेश्चन। एक जगह डेबिट और एक जगह क्रेडिट। सो व्हाट डिड वी लर्न, वन इफ देयर इज अ डेबिट एंड क्रेडिट देन यू अप्लाई सब्ट्रैक्शन। सो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वी रियलाइज के 5,000 एंड 15,000 गिव्स यू 10,000। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है इसलिए आप क्या करेंगे, सैलरी को क्रेडिट करेंगे। सो हमको सैलरी क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000 से। और आप लॉजिकली भी सोचते हैं तो देखो हुआ ही क्या था बेटा, हुआ क्या था, मुझे सैलरी डेबिट करना था 5,000 से, मैंने गलती से सैलरी डेबिट कर दिया कितना 15,000 से, 10,000 ज्यादा से डेबिट कर दिया तो 10,000 कम कर दो। So rectification of error is very logical also. It's not necessary that each and every transaction you do by wrong, reversal of wrong and correct entry, but applying this formula is a fool proof method कि भाई मिस्टेक नहीं होगी।
नहीं तो बच्चे फिर अगर इफ दे आर वेरी गुड विद द बेसिक अकाउंट्स देन ऐसे ही आप लोग से मैनेज हो सकेगा. ओके, नॉट एन इशू. नाउ our last point for today's कि ये एरर अगर मैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर रेक्टिफाई कर रही होती तो यहाँ हमने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि जर्नल एंट्री करना है, कुछ नहीं बोला था. हमने बस क्या बोला था, इफ यू आर रेक्टिफाइंग एन एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जस्ट रेक्टिफाई इट. रेक्टिफाई इट मतलब आप क्या करोगे, आप सैलरी के अकाउंट में जाओगे, ये सैलरी का अकाउंट, लेफ्ट में डेबिट राइट में क्रेडिट, और आप बस क्रेडिट साइड पे लिख दोगे बाय एरर इन पोस्टिंग 10,000. मतलब अब आपने वो एरर को रेक्टिफाई कर दिया. सो व्हाट हैपेंड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर आप कोई एरर कर रहे हो, वो डबल साइडेड एरर है तो ठीक है, अपने आप जर्नल एंट्री बन जाती है, डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट आ जाता है. बट दिस एरर वाज अ सिंगल साइडेड एरर जहां पे सिर्फ सैलरी को ठीक करना है, आप जाके सैलरी अकाउंट को करेक्ट कर दोगे. अब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, here what did we say, see I hope you guys remember, ऊपर ही हमने डिस्कस किया, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जर्नल एंट्री इज अ मस्ट. तो एक चीज तो समझ गया कि सैलरी क्रेडिट करना है मैम, ये तो दिख रहा है मुझे, सैलरी क्रेडिट करनी है 10,000 से, बट मैं किसको डेबिट करूं, मैं कैश को डेबिट नहीं कर सकती बिकॉज कैश इज करेक्ट, कैश में प्रॉब्लम ही नहीं है. तो यहाँ पे आई से दैट जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस, हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से. ओके, so whenever you are rectifying an error, if it is after preparation of trial balance or after preparation of final accounts and you realize that the debit and credit is not tallying, if there is any difference in debit and credit, it goes to suspense account. Okay, third case, after preparation of final accounts, here what we said, journal entry is a must, and second, if there is a nominal account, it will be transferred to P&L adjustment. So entry will become suspense account debit 10,000, and instead of nominal account you'll write the word to P&L adjustment account 10,000. That would be it. Now in our next video we'll be taking up some questions and we'll be discussing how to properly give the solution, because rectification of error forms a part of journal entry. So you have to maintain the format of date, particulars, LF, debit, credit. You'll have to write the narrations. ये सब मैंने अभी बात नहीं की. Today we just focused on the concept. In our next video we'll be taking up some questions.